Hello students, welcome in business studies video, and in this video we will discuss the unit number 6 of staffing, and today we will solve the different questions, different case studies relating to this chapter, to this unit. So let's start our video for some questions and case studies. So our first question is, identify the concept. This method of training aims to familiarize the new employee to the organization. ये मेथड जो है न्यू एम्प्लॉय को फेमिलियराइज करने के लिए किया जाता है. देन इट्स आंसर इज इंडक्शन ट्रेनिंग. By the induction training, new employees are introduced with the old employees. And second one question is, it involves attracting existing employees to apply for the vacant job position. इसके अंदर क्या किया जाता है, वैकेंट जॉब पोजीशन के लिए एम्प्लॉयज को अप्लाई करने के लिए अट्रैक्ट किया जाता है. सो दैट्स व्हाई इट इज द कंसेप्ट ऑफ रिक्रूटमेंट. बाय द रिक्रूटमेंट वी अट्रैक्ट एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज. एग्जिस्टिंग मीन्स जो हमारे पुराने एम्प्लॉय हैं, दैट मीन्स इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट. थर्ड इज इट्स एम टू डिटरमाइन नंबर एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉयज रिक्वायर्ड. Determine number and types of employees required means manpower planning, that means staffing process का first step estimation of manpower. So next fourth question is, it involves introducing the selected employees to other employees and familiarizing him with the rules and policies of the organization. So it is the orientation training to familiarize with old employee rules and policies. Next is, it refers to shifting of existing employee from a lower level position to higher level position. यहाँ पर जो पुराना एम्प्लॉय है उसको लोअर लेवल से हायर लेवल पोजीशन पर शिफ्ट किया जा रहा है. तो इट इज द कंसेप्ट ऑफ प्रमोशन हो रही है उसकी. Next is the it is a face to face conversation between employer and applicant. Employer applicant के बीच में face to face conversation हो रही है. That means employer is taking the interview. So it is the case of interview. Next is 6. Many organizations conduct interview in various institutes, universities and colleges to attract candidates. ऑर्गेनाइजेशन जो है वो यूनिवर्सिटी में जाके, इंस्टीट्यूट्स में, कॉलेजेस में कैंडिडेट के साथ इंटरेक्ट करते हैं. सो दैट इट इज कॉल्ड कैंपस रिक्रूटमेंट. This test is conducted to determine ability of a candidate to learn skill needed for the job. स्किल नीड, जो जॉब की नीड के लिए जो स्किल है, एबिलिटी को फाइंड आउट करना है. सो दैट इट इज कॉल्ड एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाता है. नेक्स्ट इज, it helps in overall growth of employee. It is the topic concept here is development. Under this method of training, institutes send their students to big industrial enterprises to gain practical work experience. ट्रेनिंग में क्या किया जाता है, स्टूडेंट्स को इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस के अंदर प्रैक्टिकल वर्क लेने के लिए भेजा जाता है, उनको एक्सपीरियंस लेने के लिए भेजा जाता है. सो दैट्स दीज आर द ट्रेनिंग ऑफ इंटर्नशिप ट्रेनिंग. And it involves searching employees for the outside the organization. Outside the organization को employee को find out किया जा रहा है, external sources of recruitment. It is a negative process as it's involve rejection of some candidate. यहाँ पर कुछ कैंडिडेट को रिजेक्ट कर दिया जाता है, ये एक नेगेटिव प्रोसेस है. सो नेगेटिव प्रोसेस इज selection process. So it is define the selection process. It is concerned with improving knowledge and skill of the employees. ये एम्प्लॉय की नॉलेज और स्किल दोनों को improve कर रहा है. So it is called training, not a development. Development is the overall growth. Next is, it does not change the employee's position in the hierarchy and changes the physical location only. इन दिस सिचुएशन एम्प्लॉय की पोजीशन जो है हायरार्किकल, यानी कि टॉप, मिडल लेवल, जो भी जिस लेवल पर वो बिलोंग कर रहा है उसका लेवल चेंज नहीं हो रहा, बट ही इज चेंजेस द फिजिकल लोकेशन. उसकी जॉब लोकेशन जो है वो चेंज हो रही है. सो दैट्स इट इज द टॉपिक ऑफ ट्रांसफर. एंड लास्ट, इट एम्स टू क्रिएट पूल ऑफ एप्लीकेंट्स फॉर द जॉब. ये
एप्लीकेंट्स के लिए एक जॉब के लिए पूल, बहुत ही उनके लिए वैरायटी ऑफ जॉब्स जो है प्रोक्योर करवाता है. सो दैट्स व्हाई इट इज द टॉपिक ऑफ रिक्रूटमेंट. I hope you understand this question, how you understand the concept. So our next second question is match the following: to measure the actual skills processed, to measure the potential to acquire skills, to judge the person's maturity and value system, to judge the person ability to make decision and judgment. And B part is belong to intelligence test, aptitude test, and personality test, and fourth one is trait test. So first of all, we match with the to measure the actual skill process. So it is the ट्रेड टेस्ट. क्योंकि हमने किसका टेस्ट कर रहे हैं, हम यहाँ पर इसका मेजर द एक्चुअल स्किल को टेस्ट कर रहे हैं, उसकी प्रोसेस को चेक कर रहे हैं. सो इट इज ट्रेड टेस्ट. सेकंड इज टू मेजर द पोटेंशियल ऑफ एक्वायर स्किल, दैट मीन्स इट बिलोंग्स टू एप्टीट्यूड टेस्ट. And third one is to judge the person's maturity and value system. पर्सन की मैच्योरिटी और उसके वैल्यू सिस्टम को चेक करना, दैट मीन्स कौन सा टेस्ट लिया जा रहा है, इट इज अ पर्सनैलिटी टेस्ट. एंड टू जज द पर्सन्स एबिलिटी टू मेक डिसीजन एंड जजमेंट, इट इज द इंटेलिजेंस टेस्ट. सो नेक्स्ट क्वेश्चन: Astra Builders has to deliver the flats to its buyer on time. Due to this, there is a sudden rush of work. Therefore, the company needs to arrange workers to work at the sites at a short notice. वो वर्कलोड बढ़ गया है, वर्क इंक्रीज हो गया है, क्योंकि बायर्स को जो है फ्लैट जल्दी जल्दी रेडी चाहिए. तो वहां पर उन्होंने साइट के ऊपर ही, जहां पर फ्लैट बन रहे थे उसी साइट पर उन्होंने वर्कर्स को अरेंज करने के लिए एक शॉर्ट नोटिस लगा दिया है. तो आपने यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा रिक्रूटमेंट का सोर्स यहाँ पर कंपनी यूज कर रही है कैजुअल वैकेंसी के लिए, क्योंकि ये वैकेंसी कैजुअल है. सो ऑप्शंस आर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, एडवर्टीजमेंट आर recommendation of employee, and employment exchange. So it is the एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, क्योंकि कैंपस पर ही, साइट पर ही जो है वो नोटिस लगा दिया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड्स सिक्योरिटी सर्विसेज, it requires such candidates who are reliable and don't leak out the secrets of their client. एक ऑर्गेनाइजेशन जो सिक्योरिटी की सर्विस प्रोवाइड करती है, बहुत ही सीक्रेट काम करती है, कोई भी इंफॉर्मेशन बाहर लीक नहीं होती, तो उसको ऐसे कैंडिडेट की जरूरत है जो बहुत रिलायबल हों और कहीं भी किसी भी कारण से वो अपने क्लाइंट को कोई भी सीक्रेट बाहर आउट ना करें. सो विच स्टेप इन द सिलेक्शन प्रोसेस विल हेल्प टू एंश्योर दिस. वो जो सिलेक्शन का उनका टेस्ट होगा, कौन सा ऐसा टेस्ट वो लेंगे अपने एम्प्लॉयज का कि आने वाला एम्प्लॉय जो है बहुत ही सिक्योर हो. So our first option is personality test, employment interview, reference and background check, and all of the above. So here employer take the all of the test. Personality test में उसकी speaking tone, employment interview में भी उसका employment से related information ली जाएगी, और reference और background से पता लगेगा कि वो employee कितना secret, कितना reliable है. So next start the case study. Vandana Public School. Before solving the case study, first of all, we read the question. Explain the steps that have been performed by Vandana Public School in the process of identifying and choosing the best candidate. यहाँ पर हमने देखना है कि वंदना पब्लिक स्कूल जो है एक प्रोसेस कैसे फॉलो कर रही है, आइडेंटिफाई एंड चूजिंग द बेस्ट कैंडिडेट. तो चूजिंग बेस्ट एंड आइडेंटिफाई जो एम्प्लॉयज होते हैं उसको हम बोलते हैं सिलेक्शन प्रोसेस. तो read the question. Vandana Public School had a vacancy of maths teacher. They were looking for a smart and creative teachers having a drive for excellence. An advertisement was given in all leading dailies. And since the response was huge, the school examined all the applicant forms and rejected the candidates who did not have to necessary qualification. यहाँ पर उनको मैथ्स के टीचर की जरूरत है. बहुत सारे टीचर्स ने जो है एप्लीकेशंस दी हैं, लेकिन उन्होंने कुछ में से जो उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन उनके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग नहीं मैच कर रहे, तो वो उन्होंने जो है रिजेक्ट कर दिए हैं.
सो देयर आफ्टर ए टेस्ट वाज कंडक्टेड, जो भी सेलेक्टेड हुए थे कैंडिडेट उसका टेस्ट लिया गया टू मेजर द एग्जिस्टिंग स्किल्स ऑफ कैंडिडेट, उनकी कैंडिडेट की स्किल को चेक करने के लिए कि मैथ्स में कितने स्किल हैं वो। आफ्टर दैट इट वाज फॉलोड बाय ए फॉर्मल इन डेप्थ कन्वर्सेशन विद द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल। टेस्ट के बाद एग्जिस्टिंग स्किल को चेक करने के बाद प्रिंसिपल के ऑफिस में उनका जो है न्यू जो कैंडिडेट है उसका जो है कन्वर्सेशन का मीटिंग हुई एंड पैनल ऑफ द मैथ्स एक्सपर्ट, और वहीं पर प्रिंसिपल के साथ ही मैथ्स के एक्सपर्ट्स का जो पैनल थे, जो मैथ्स एक्सपर्ट्स थे वो बैठे हुए थे, उनसे उनकी डायरेक्ट कन्वर्सेशन हुई। तो आपने यहाँ पर बताना है कि वंदना पब्लिक स्कूल के अंदर अपनी स्टाफिंग की, अपनी सिलेक्शन की प्रोसेस में क्या क्या काम किया गया, क्या क्या स्टेप फॉलो किए गए। सो and second question is give the name and also meaning the test which was conducted by the school। यहाँ पर कौन सा टेस्ट उनका लिया गया था, हमने उस टेस्ट का नेम भी बताना है। सो स्टेप जो इन्वॉल्व हुए हैं वंदना पब्लिक स्कूल ने, आइडेंटिफाइंग चूजिंग द बेस्ट कैंडिडेट, सबसे पहले तो उन्होंने प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग की जहां पर उन्होंने कुछ एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर दिया, वो प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग थी। उसके बाद उन्होंने जो बचे हुए कैंडिडेट थे, रिमेनिंग कैंडिडेट्स थे, उन एप्लीकेंट्स को बुलाया और उनका स्किल टेस्ट लिया। दैट मीन्स उनका सिलेक्शन टेस्ट लिया एक बेसिकली, और दूसरा एक्सपर्ट्स जो है थर्ड, उसके बाद उसको मैथ्स एक्सपर्ट्स और प्रिंसिपल के साथ सामने उनका जो है कन्वर्सेशन की गई, दैट मीन्स वो एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू लिया गया। एंड लास्ट में उनका जो टेस्ट लिया गया था वो ट्रेड्स टेस्ट था, क्योंकि वो मैथ्स की जॉब के लिए आए थे तो उनका जो टेस्ट था वो मैथ्स से रिलेटेड ही लिया गया था। सो ट्रेड टेस्ट वाज कंडक्टेड बाय द स्कूल टू मेजर द एग्जिस्टिंग स्किल्स processed by the candidates। I hope you understand this case study. Now next case study is Zeno Limited is a global information technology consulting company with 45,000 employees serving over 600 clients in 23 countries। उनके 45,000 एम्प्लॉय हैं, लगभग 600 क्लाइंट्स हैं और 23 कंट्रीज में वो काम कर रही है कंपनी Zeno Limited। इट्स चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मिस्टर नेल सुमन guided the company through 2 decades of diversification and growth to emerge as one of the leading Indian companies in the software industry। The company has set standards in ensuring the best training opportunity for its employee। उनका जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है मिस्टर नेल सुमन, उसने मतलब लगभग 20 ईयर से वो अपनी कंपनी के ग्रोथ की डाइवर्सिफिकेशन को चेंज करने के लिए एक लीडिंग कंपनी को, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री कंपनी है जो इंडिया की, उससे जो है मर्ज, उससे डिस्कशन चल रही है और कंपनी ने अपने कुछ स्टैंडर्ड भी सेट कर लिए हैं और ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटी अपने एम्प्लॉयज को देने के लिए उन्होंने अपने जो है स्टैंडर्ड भी सेट कर लिए। द प्रोजेक्ट गाइडेंस प्रोग्राम इज ए 52 डेज स्ट्रक्चर्ड। अब जो एक प्रोजेक्ट प्रोग्राम बनाया गया उसके द्वारा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के द्वारा, वो भी 52 डेज का प्रोग्राम था ट्रेनिंग का। Training program offered by all the recruits of varied backgrounds to be trained in essential behavior and technical skills that prepares them to work in a live customer project। These recruits are hired from universities and management। ये जो recruits जो उन्होंने एम्प्लॉय फाइंड आउट किए थे वो यूनिवर्सिटी और मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी, टेक्निकल प्रोफेशनल एज वेल एज ए मैनेजरियल जॉब। It is to help the new employee in settling down quickly into the job by becoming familiar with the people, thus surrounding the job and the business। The questions are identify the external sources of recruitment used by the company to hire new employee। इस पैराग्राफ में यहाँ पर जो है Zeno Limited जो है वो नए एम्प्लॉयज को फाइंड आउट कर रही है, तो उन्होंने कौन कौन से एक्सटर्नल सोर्सेज को यूज किया है। तो जीनो कंपनी जो है यहाँ पर कैंपस रिक्रूटमेंट कर रही है, क्योंकि उन्होंने क्या किया है, उन्होंने यूनिवर्सिटीज के, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस के और टेक्निकल प्रोफेशनल वहां पर कैंपस के अंदर जाकर के एम्प्लॉयज को सेलेक्ट किया है। सो दैट्स व्हाई फर्स्ट आंसर इज कैंपस प्लेसमेंट। एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड, explain the method of training used by the company to train employees selected by the source of recruitment। अब हमने इस पैराग्राफ में पार्ट ए के अंदर जो हमने एक्सटर्नल कैंपस रिक्रूटमेंट का मेथड अडॉप्ट किया था, तो वहां अब हमने यहाँ पर ट्रेनिंग का मेथड उनको बताना है, कौन सी ट्रेनिंग दी जाएगी। तो हेयर वी गिव द ट्रेनिंग ऑफ इंडक्शन ट्रेनिंग।
It is a type of training given to help the new employee in settling down quickly into the job by becoming familiar with the people, the surroundings, the job and the business. तो उनको इंडक्शन ट्रेनिंग दी जाएगी, न्यू एम्प्लॉयज को पुराने एम्प्लॉय के साथ इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा. थर्ड क्वेश्चन इज स्टेट 3 वेज इन विच द प्रोजेक्ट रेडीनेस प्रोग्राम कैन बेनिफिट जीनो लिमिटेड. हमने यहाँ पर जो है 3 वेज बताने हैं जो प्रोजेक्ट रेडीनेस प्रोग्राम जो है वो जीनो लिमिटेड को बेनिफिट कराएगा. नंबर 1, यहाँ पर उनको बेनिफिट जो है किस होने वाले हैं. नंबर 1, अवॉइडिंग वेस्टेज. इस ट्रेनिंग से क्या बेनिफिट हो जाएगा अगर ये प्रोजेक्ट शुरू हो जाएगा? तो सबसे पहला क्या होगा, एक तो होगा अवॉइडिंग वेस्टेज ऑफ एफर्ट्स एंड मनी, एंड सेकंड इज द enhancing employee productivity both in terms of quantity and quality, leading to the higher profits. Third is equipping the future manager to take over in an emergency, and fourth is reducing employees turnover. ट्रेनिंग के बाद एम्प्लॉय की टर्नओवर रेशियो, एब्सेंटीज की वैल्यू कम हो जाएगी, उनका मोरल इंक्रीज होगा, उनका एब्सेंटीज्म रिड्यूस होंगे, एंड दिस आल्सो हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन इन ऑब्टेनिंग effective response in a fast changing environment. So I hope you understand this concept case study. Now our unit number 6 is completed, and thank you. Have a nice day.